ریڈ زون ود ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے کراچی ڈائسس کی، جو کہ چرچ آف پاکستان کی ڈائسس ہے اور جس میں جناب عزت مآب بشپ صادق ڈینیل صاحب تعینات ہیں تقریباً پچھلے 19 سال سے۔ اور آج ہم بات کریں گے بہت ساری چیزیں گردش کر رہی ناظرین کہ جس میں ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آ رہا ہے کہ جس کو دیکھ کے نہ صرف پاکستان کے مسیحی پریشانی میں مبتلا ہیں بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہمارے پاکستانی ہیں باہر، وہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت ہے کیا، کہ کیا وجہ ہے کہ کراچی ڈائسس میں کوئی نہ کوئی سکینڈل چلتا رہتا ہے بشپ صاحب کے حوالہ سے، کہ جب وہ ہمیشہ خبروں میں ہی رہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چرچ کے لیے، بشپ صاحب کے لیے اور پوری پاکستانی جو مسیحی قوم ہے ان کے لیے کافی تشویش کی بات ہے کہ چرچ لیڈرشپ پر ایسے سکینڈلز کیوں آتے ہیں۔ ناظرین ہم ایسا دیکھ سکتے ہیں کہ ایشو کیا بنا کہ ایک آباد جو ہے ادارہ ہے جو کہ پورے پاکستان کی ایسوسی ایشن ہے بلڈرز کی، ان کی طرف سے کیس کیا جاتا ہے بشپ صادق ڈینیل صاحب پر اور ان کے جو ظفر اقبال ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا ایگریمنٹ کیا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو 7,000 گھر جو ہے اپارٹمنٹ جو ہے کرسچن کمیونٹی کے لیے بنا کر دیں گے۔ ناظرین جب دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ 7,000 گھر جو ہے کرسچنز کو دیے جائیں۔ یہاں تک کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بشپ صاحب نے درد محسوس کیا کہ وہ جو وہاں پہ لوگ بستے ہیں ان کے لیے گھر دیے جائیں تاکہ اپنا چھت ہو سکے، مگر اسے آگے تھوڑا سا جا کر دیکھتے ہیں ناظرین، جو خبریں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں میرے ساتھ کہ کچھ کروڑوں کی بات ہو رہی ہے اور ایک ٹیبل پر ظفر اقبال صاحب وہ پیسے رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم نے تحقیق کی ناظرین تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کچھ ایسا ایگریمنٹ بھی سائن ہوا ہے اس آباد کے ساتھ، اس بلڈر کے ساتھ، جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ پیسوں کا لین دین کرنا ہے، ایڈوانس انہوں نے گارنٹی بھی مانگی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ کہ چیکس جو ہے تقریباً 1 کروڑ روپے کے چیکس جو ہے کسی کا نام مینشن نہیں کیا گیا، نہ کیش لکھا گیا، نہ کوئی کراس چیک ہے، مگر یہ چیکس جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور بینک میں ڈپازٹ ہوئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ایک لیٹر جنریٹ کیا گیا ناظرین جو کہ فیک لیٹر ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ وہ لیٹر جو ہے جو آرچ بشپ روہان ولیمز کا ہے اور یہ ہے 2019 کا ناظرین، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جناب بشپ ڈینیل صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم پیسہ ریز کر رہے ہیں جو کہ مڈ مارچ تک آپ کو دیا جائے گا۔ مگر اس میں ناظرین ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے کہ ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں فلیٹس کی، اپارٹمنٹس کی، مگر لیٹر کہہ رہا ہے کہ ہم ہاسپٹل کے لیے پیسہ ریز کر رہے ہیں۔ اور آگے چل کے جب ہم نے تحقیق کی ناظرین تو یہ جو آرچ بشپ روہان ولیمز ہیں یہ جناب 5 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں، اور یہ جو لیٹر اپنے لیٹر ہیڈ پہ ایشو کر رہے ہیں وہ جناب 2019 کا ہے، جبکہ یہ اس سے پہلے 5 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو نئے جو آرچ بشپ آف کینٹربری آئے تو ان کو جناب یہاں سلیم کھوکھر صاحب ہیں انگلینڈ میں، انہوں نے ایک لیٹر لکھا تاکہ تصدیق ہو سکے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ انہوں نے لیٹر لکھا ہے جناب وہاں کے ابھی جو کرنٹ آرچ بشپ آف کینٹربری ہیں کہ آپ یہ تصدیق کر دیجئے کہ جو لیٹر بشپ ڈینیل صاحب شو کرتے ہیں کہ وہاں کے آرچ بشپ آف کینٹربری جو ہے پیسہ ریز کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کے حوالہ سے، کیا یہ حقیقت ہے؟ تو ناظرین حقیقت اس سے بھی جان سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر
کہ جو سگنیچر کیے گئے ہیں ایکس آرچ بشپ کے اور ان کے جو اوریجنل سگنیچرز ہیں میں آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سگنیچرز اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں بخوبی کہ فیک لیٹر کون سا ہے, اوریجنل سگنیچرز کون سے ہیں. مگر اس کے بارے میں جب ناظرین ہم نے بشپ ہیمفری سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا آپ میرے ساتھ سن سکتے ہیں. بشپ صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لیٹر بشپ آف کینٹربری کا فیک لیٹر بشپ صادق ڈینیل نے پریزنٹ کیا ہے, آپ کی نظر سے گزرا ہے بشپ صاحب وہ؟ بالکل, میرے پاس 2 دن ہوئے آیا. جی, تو کیا یہ فراڈ میں آتا ہے کہ نہیں؟ وہ بشپ جو 5 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں, نہیں, بالکل سن تو لیں نا میری بات, میں بولا نہیں آپ کی بالکل بات, بولا نہیں آپ کی بات میں. تو وہ جو لیٹر پریزنٹ کیا گیا ہے بشپ ولیم جو بھی آپ کے آرچ بشپ پہلے رہے ہیں کینٹربری, ان کے نام سے ایک لیٹر دیا گیا ان کو بلڈرز کو کہ ہم فنڈ ریز کر رہے ہیں اور جب فنڈ ریز ہو جائے گا تو ہم مڈ مارچ میں 2020 میں جا کر آپ کو پیمنٹ کریں گے. جب اس کی تحقیق کی گئی, وہ بشپ تو پہلے 5 سال پہلے ہی ریٹائر ہو چکے ہیں, جو ابھی آرچ بشپ ہے ان کو بھی لیٹر لکھ دیا گیا ہے اس کی ویریفیکیشن کے, 5 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کے نام سے 2019 میں لیٹر سرکولیٹ کیا گیا, بلکہ اس کو دیا گیا بلڈر کو کہ ہم یہ, اگر آپ اس کو دیکھ سکیں اس کے سگنیچرز کو بھی, میں اوریجنل سگنیچر بھی ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا, کہ وہ سگنیچر اور جس لیٹر پہ سگنیچرز ہوئے ہیں بالکل فیک سگنیچرز ہیں. تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ خدا کا خادم اس طرح کی چیزیں کر رہا ہو؟ ساجد, پہلی بات یہ ہے کہ آیا وہ بشپ صادق ڈینیل نے لیٹر منگایا ان کے نام سے, یا اس کو, یا میری بات سنیں نا, یا اس کو بلیک میل کرنے کے لیے ایسے لیٹر بنائے گئے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو فیک لیٹر کسی نے بنا دیا ہے بشپ صادق ڈینیل کے حوالہ سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لیٹر فیک ہو سکتا ہے, سارا کچھ فیک ہو سکتا ہے, تو یہ جو تصاویر نظر آ رہی ہیں جو پیسہ لیا گیا ہے ظفر اقبال صاحب نے, کیا یہ بھی تصویریں فیک ہیں؟ اس کے لیے ہم نے جاننے کی کوشش کی, ہم کال کی جناب وہاں پہ جو پاسٹر شفیق ہیں جو کہ کراچی کے متحرک پاسبان ہیں, ان سے جان سکے کہ حقیقت کیا ہے. جی السلام علیکم, پادری شفیق کمل صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ساجد اسحاق بات کر رہا ہوں ریڈ زون سے, کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل. اچھا پائز صاحب, ہم نے آپ کو زحمت دی کہ بڑی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کراچی کو لے کر. کراچی ڈائسس کے جو عزت مآب بشپ صادق ڈینیل صاحب ہیں, ان کے حوالہ سے خبریں آ رہی ہیں, اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں ظفر اقبال صاحب, وہ کسی ایسی ڈیل میں انوالو ہے کہ جو کہ کوئی 7,000 شاید کوئی گھر بنانے تھے کرسچنز کے لیے. میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا پروجیکٹ انہوں نے ذہن میں ان کے آیا, مگر یہ آگے جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹروورسی چل پڑی کوئی 12 کروڑ روپے کی, اور ان کے اوپر کیس بھی ہو گیا. ایک لیٹر بھی منظر عام پر آیا جو کہ آرچ بشپ صاحب کا ہے, روان ولیم صاحب ہیں. اور کل ہم نے بات کی جناب ہمفری پیٹر صاحب جو کہ ماڈریٹر بھی ہیں, اور ہم نے پوچھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالہ سے کہ جب اس طرح کے سکینڈلز آتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو فیک لیٹرز بڑے نکلتے ہیں اس طرح کے. تو ہم جاننا چاہیں, کیونکہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس طرح کے معاملات پہ, ہم جاننا چاہیں کہ آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں اس کے لیے. دیکھیں جی, ایک تو ماڈریٹر صاحب کا پروگرام میں نے بھی سنا, تو جو انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے چرچ آف پاکستان میں, تو مجھے سن کر یہ بہت افسوس ہوا کہ یہ سٹیٹمنٹ ان کی ٹھیک نہیں ہے. ان کو جتنے وہ نفیس آدمی ہیں ان کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. 8 ڈائسس کو ہیڈ کر رہے ہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب پراپر طریقہ کار نہیں ہے. پریکٹیکل اکاؤنٹیبلٹی, فروٹفل اکاؤنٹیبلٹی کا کہیں ہمیں نام نظر نہیں آیا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ڈائسس آف کراچی میں کوئی 8-10 پادری ہیں جن کی 16 سال سے تنخواہ بند کر دی. تو ان کو سارے علم میں ہے, سارے چرچ کے, سینٹ کے, ماڈریٹر صاحب کے, کہ
क्या अकाउंटेबिलिटी है? उन्होंने तो कभी फोन करके किसी को पूछा नहीं है कि भाई आपका क्या हाल है, आपकी क्यों सैलरी बंद की गई, क्या वाकयात है, क्या ग्राउंड फैक्ट्स है, कुछ नहीं। और इस सिलसिले में भी मैं आपको बताऊं कि वो जो रॉन विलियम का लेटर है वो तो आली जनाब 5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, ये जाली लेटर है। मैं जिस प्रोग्राम का आप हवाला दे रहे हैं, मैंने सुना कि मॉडरेटर साहब ये कह रहे थे कि ये जाली लेटर ये ब्लैकमेल करने के लिए किसी ने बनाया है। कौन ब्लैकमेल कर सकता है इनको, आप बता सकते? वो कह रहे थे कि बिशप साहब तो मुकद्दस गाय है, वो तो ये कर नहीं सकते। हकायक इससे फर्क है। पहली बात कि किसी बंदे में जिसका ताल्लुक नहीं है उसकी क्या जरूरत के जाली लेटर बना के और बिशप सादिक डैनियल को और उनके सेक्रेटरी को फंसाए। ये इन मुसलमान दोस्तों के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया, ये टेबल पे बैठ के ये उनको लेटर दिया गया, फिर एग्रीमेंट हुआ, फिर उनसे 12 करोड़ रुपए ले लिए। ये मीडिया पे तस्वीरें गर्दिश कर रही है, करोड़ों रुपया टेबल पे पड़ा है, कुछ चेक दिए हैं, वो चेक भी गर्दिश कर रहे हैं। तो जिन्होंने पैसे दे दिए उन्होंने लेटर को सच समझकर और दुरुस्त बंदों से, यानी बिशप सादिक डैनियल से और सेक्रेटरी डाइसन से वो रिसीव किया लेटर, और उनकी उस वक्त बज़ाहिर तसल्ली हुई तो उन्होंने पैसे दिए। तो फिर बाद में ये तो जब पैसे नहीं आए, जिन पैसों का वादा किया था कि रॉन विलियम साहब भेजेंगे, वो मुकर्रर वक्त पर पैसे नहीं आए, तो फिर उन्होंने इन पे FIR कटाई। तो ये कहना कि ये लेटर किसी ने इनको फंसाने के लिए बनाया, नहीं, ये डाइसेस के जिम्मेदार लोगों ने, यानी बिशप सादिक डैनियल और क्या कहते हैं कि सेक्रेटरी जफर इकबाल साहब की कारस्तानी है, और ये इनका पहला काम नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक मंसूबा ट्रिनिटी चर्च के अंदर शुरू किया था, 65 मंजिला बिल्डिंग बना रहे थे जो नाकाम हो गया। अच्छा, एक क्लेम जो कर रहे हैं बिशप हम्फ्री पीटर्स, वो कह रहे हैं कि ये चर्च की ज़मीन नहीं है, इससे चर्च का कोई ताल्लुक नहीं, बाहर कहीं प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसमें कितनी हकीकत है जी? देखें, ये बात जो पहला प्रोजेक्ट था, जो पहले फेल हुआ था, जो जिसको इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोजेक्ट का नाम दिया, वो भी एक जालसाजी थी। वो चर्च की जमीन थी, लेकिन ये जो है ये किसी मुसलमान बिल्डर के साथ इन्होंने मिलके ये काम करने की कोशिश की। ये दुरुस्त बात है कि ये जमीन चर्च की नहीं थी, लेकिन इन्होंने उनसे वादा किया कि 70% फंड चर्च देगा जो हम बाहर से मंगवाएंगे, और 30% आप दें। उस 30% से उस बंदे को ऐसा शीशे में उतारा कि उससे 12 करोड़ ले। जब हमने बात की बिशप हम्फ्री से, उन्होंने कोई सीरियस नहीं लिया, कहते ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे होंगे तो वापस कर देंगे वो। तो मतलब हम देख रहे हैं कि सीरियसनेस नहीं है मॉडरेटर साहब की भी और चर्च ऑफ पाकिस्तान के इस मामले को लेकर। मॉडरेटर साहब देखिए जिस पोस्ट पे बैठे हैं उन पर आम बिशपों से 8 गुना ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। हो सकता है किसी मसलत के तहत वो अपनी जुबान नहीं खोल रहे, लेकिन उनको सारा पता है कि कहानी क्या है, सब पता है। किसी मसलत के तहत हो सकता खामोश हो। ये जो इस किस्म के काम करते हैं ये माफिया के लोग। तो मैं नहीं समझता कि मॉडरेटर साहब को पता ना, उनको पता होगा। हमें कंफर्म कर सकते हैं ये जो 12 करोड़ है, ये अगर बिशप साहब ने लिया है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। चर्च की पॉसिबिलिटी है कि वो रिफ्लेक्ट हुआ है, हम जान सकें उसको। जी कुछ जी कैश है, बाकी चेक लिया है जी, लेकिन वो चर्च के अकाउंट में नहीं आया। ये हमें खबर है कि चर्च के अकाउंट में एक टेडी पैसा नहीं गया, वो कहाँ गए हैं। तो ये आप क्लेम करते हैं, ये आप क्लेम कर रहे हैं अपनी खबर को कि वो चर्च के अकाउंट में नहीं गए? डेफिनेटली मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि चर्च के किसी अकाउंट में नहीं आए। हालांकि इन्होंने एग्रीमेंट डाइसेस के नाम पे किया, लेकिन चर्च के किसी अकाउंट में एक टेडी पाई नहीं आई। कल वो डाल दे नहीं पता, अभी तक कोई पता नहीं आया। क्या वजह है कि ये हमेशा ख़बरों में रहते हैं बिशप साहब? कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहती है इनकी, हमने दूसरी खबरें भी सुनते रहते हैं कि और भी प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ रहे। तो क्या यहाँ पे जो आपकी कौंसल है, सेशन है, वो इतनी इनएक्टिव है कि बिशप साहब को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकती? बड़ी मुआवजत के साथ मैं ये कहूँगा कि ये जो पादरी अदालत है, जो काउंसिल है, जो एग्जेक्टिव है,
चर्च ऑफ पाकिस्तान डायसिस ऑफ कराची की, ये वीक हो। हाँ, ये अभी तक तो वो बिशप साहब से इतना खौफजदा है कि ये उनकी तनख्वाह बंद कर देते हैं, ये लोगों पर FIR कटा देते हैं, ये उनको बंद करा देते हैं। माजी के ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिसकी वजह से पादरी बेचारे डरते हैं। वो इतने गरीब हैं कि अगर किसी की 2 माह सैलरी ना मिले तो उनको तो रोटी नहीं मिलेगी। मैं खुद इनके इस जुल्म का शिकार रहा हूँ। मुझ पे और मेरी बीवी पे 8 FIR है। एक और पादी अहमद साहब है, 2 FIR है उन पे। एक और हैं मेरे जानने वाले जिनका ताल्लुक चर्च से है, 2-3 FIR है उन पे। तो हम भी बुक्स के बैठे हैं तो पादरी बेचारे डरते हैं, इसलिए वो अपनी जुबान नहीं खोलते। हाँ, कल को ये रिटायर हो जाते हैं, इनको सीट से अलग किया जाए और चर्च खाली कराया जाए तो वही पादरी बयान दे देंगे। कितने माह से नहीं मिली सैलरी जी? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से सैलरीज नहीं मिली, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं और जो गरीब है उनको ज़रूर वहाँ तक पहुँचना चाहिए, उन तक लेके सैलरीज सारा। जो एक बात बिशप हेम्फ्री कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है निज़ाम, मगर हम देखते हैं कराची में 2 बिशप्स मौजूद हैं। क्या ये निज़ाम का हिस्सा नहीं है कि क्या वजह हुई कि 2 बिशप्स कैसे वहाँ पे बैठ गए? जैसे कि 2 बिशप बैठे हुए हैं और डायसिस के अंदर कैथीड्रल के अंदर बैठे हुए हैं और मॉडरेटर साहब कह रहे हैं सब ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है। 5 पादरी है जिनकी 16 साल से तनख्वाह बंद है और मॉडरेटर साहब कह रहे हैं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी ठीक है और सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ आ रहा है। उसकी वजह क्या है? 16 साल से क्यों बैठे हुए पादरी साहब, नहीं मिली उनको सैलरीज? तो जनाब 16 साल तो ये जमीनें बेचने के चक्कर में है। जिस बंदे ने इसके खिलाफ स्टैंड लिया कि आप नहीं बेच सकते, उसकी सैलरी बंद, उस पे FIR है। तो यानी कि ये जब से तशरीफ़ लाए हैं तब से ही उन पास्टर्स को तकरीबन नहीं मिली सैलरीज, क्योंकि वो इनके ख़िलाफ़ खड़े हुए। जब हमने पूछा था बिशप हेम्फ्री पीटर से कि आपके तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि बिशप अकाउंटेबल नहीं है, कोई इस पर केस नहीं कर सकता, कोई बात भी करे तो आप निकाल के बाहर कर देते हैं उनको, तो उन्होंने डिनाई किया था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम ऐसा नहीं करते। जो आप उसको तस्दीक कर रहे हैं कि इन्होंने जिसने बात की उनको सैलरीज तक नहीं दे रहे ये लोग। देखिए, आपकी कांग्रेगेशन में से कोई आवाज उठाता है ना, आप कांग्रेगेशन से फारिग कर देते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको लोगों कोई मुझे बताएं किसको फारिग किया, किसको फारिग किया, बताएं ना, कहाँ किसको फारिग किया है, किसको फारिग किया बताएं। वो तो फारिग हो गए ना, सारे फारिग हो गए जिन्हें माफी मांग के स्टैम्प पेपर दे दिया, लिख दिया, बाकी तो सारे फारिग हैं। कितने फारिग हैं? तो और अगर बिशप साहब ये कह रहे हैं अपने दिल पे हाथ रख के, तो फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं तो फिर चीजें सामने लेके आ सकता हूँ। जी जी, बिशप साहब के ऊपर भी केसेस हैं लोगों के और मेरा भी केस है इनके ऊपर। ये इन्होंने हॉस्टल पे 30-40 गुंडे पुलिस के साथ मिलके दरवाजे तोड़ के जाके लड़कियों को मारा और एडमिनिस्ट्रेटर को मारा। वो केस अभी तक पेंडिंग है और भी लोगों ने केस किए हुए हैं। मैं बल्कि थोड़ा सा ऐड कर दूं कि इनकी जो सालाना काउंसिल होती है उसके अंदर उन्होंने अकाउंट्स में शो किया कि कोर्ट की तैयारियों में हमारे इतने पैसे लग गए, वो करोड़ों में। अच्छा भाई साहब, एक खबर ये गर्दिश कर रही है कि इन्होंने अपनी एक्सटेंशन करा ली 3 साल के लिए, तो क्या ये हकीकत है? मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अगर ये बिशप की पोस्ट इंतहाई जिम्मेदाराना पोस्ट है और मैं समझता हूँ जिम्मेदार लोग ही बैठने चाहिए, जिम्मेदार ही बैठे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए आप भी जानते हैं यहाँ कुछ इनसे बाइज भी नहीं है कि ये कर भी जाए। बड़ा ट्रेंड है भाई साहब के बिशपों के बच्चे पढ़ते हैं बाहर, इनकी जो फैमिलीज होती हैं बाहर सेटल्ड होती हैं, और जब ये रिटायर होते हैं तो ये भी बाहर चले जाते हैं। इन्होंने भी कोई ऐसा कर लिया काम के नहीं? अभी मेरी इतला के मुताबिक पैसे भी उधर पहुँच गए हैं और घर भी ले लिया हुआ है और इसी साल उस घर का इफ्तिताह भी किया गया है और उनकी बेटी और दामाद वो जो फैमिली है कि वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये भी पूरी फैमिली वहाँ चक्कर लगा के आ गए हैं। मेरे ख्याल में काफी सारे पैसे ट्रांसफर हो गए और अगर मैं गलती पर नहीं तो ये जो 12 करोड़ है इसमें से भी जो लाइन शेयर है वो अमेरिका पहुँच चुका है। तो भाई साहब ये आप तस्दीक कर रहे हैं, एक गारंटी के साथ कह रहे हैं, क्लेम जो कर रहे हैं आप? मैं जैसे कि बाइबल साइटी वाला इशू हुआ था तो मैंने कहा था कि अगर किसी को मेरी बयान पे शक हो तो
GIT बना दी जाए। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फिर अगर कोई जिम्मेदार लोग इस चैलेंज को कबूल करें, गवर्नमेंट से GIT बनवा लें, सारी चीजें उनके सामने आ जाएंगी। अगर मैं मुजरिम हूँ तो मुझे सजा दे दें, अगर फिर ये बातें सच निकले तो फिर इनको सजा मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन, आपने सुना कि पादरी शफीक कमल जो है, जिन्होंने बाइबल सोसाइटी का बड़ा एक सेंसिटिव इशू रेज किया, वो क्लेम कर रहे हैं अपनी सारी उन बातों पर कि वो कहते हैं कि अगर है तो इस पर GIT बना दी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उन्होंने जिस तरह से फरमाया कि बिशप साहब ने किस किस तरह से लोगों को दबाया, पादरियों के खिलाफ FIRs की, 16-16 साल से सैलरीज नहीं दी गई, उनको इतना हरासा किया जा रहा है, उनके खिलाफ FIRs कराई जा रही हैं, और इसमें पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर उनको इतना हरासमेंट होती है उनकी। नाजरीन के पादरियों ने पैगाम क्या सुनाना है, वो तो बिशप साहब से डर के खौफ में बैठे होते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ की बात नहीं है, ये मशहूर है कि बिशप सादिक डैनियल साहब डॉन हैं कराची के। हम उनको चैलेंज ये करना चाहते हैं कि खुदा के खादम जो होते हैं डॉन नहीं हो सकते। हम उनको ये चैलेंज करना चाहते हैं, कलाम की जब तालीम हम देते हैं तो हमें उसके ऊपर अमल भी करने की ज़रूरत है। हमने जब सुना है ये सारी चीज़ें, नाजरीन आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, पादरी साहब ने कहा कि वो भी इनके डंगे हुए लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनको भी मुश्किलात का सामना हुआ, और वो उनमें से एक पादरी हैं जो कि बोलते हैं। और हम यहाँ पर नाज़रीन जानेंगे और भी कि क्या वजूहात हैं कि क्यों चर्च के जो मॉडरेटर हैं कहते हैं कि निज़ाम ठीक है। और जो आपने सुना, अगर आप बाज़मीर हैं, अगर ये सारे बिशप साहब बाज़मीर हैं, तो ये क्या कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी निज़ाम ठीक है। पादरी साहब ने बड़े अच्छी बात की कि जो मॉडरेटर है उसके ऊपर 8% ज़्यादा जिम्मेदारी को, 8 डायसिस को वो देख रहे हैं कि वो इतने रिलैक्स्ड हैं, वो कहते सब ठीक है। हम बताएंगे नाजरीन और कहाँ कहाँ पे मुश्किलात आ रही हैं चर्चेस में, और जो साथी हमारे मसीही हैं जो समझते हैं कि वक्त आ गया है कि हम बिशप्स को अकाउंटेबल ठहरा सकें, ये वक्त आ गया है हमारे लिए सारे बिशप्स, क्योंकि जो पोजीशन है खुदा के खादम मोतबर है, मगर जो इस तरह की इल अटेंशन में इन्वॉल्व है, जो इस तरह की कामों में इन्वॉल्व है, नाजरीन क्या आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आप अपने खुदा के घर में जो कारोबार होते हैं उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या ये आप देख सकते हैं कि इनके बच्चे पढ़े बाहर और हमारे बच्चे जो है उनको अच्छी सहूलतें भी ना मिलें? इन्होंने तो सब ने चले जाना है बाहर रिटायरमेंट के बाद। तो नाज़रीन यहाँ पे हमने और आपने रहना है, हमने अपने मुल्क की इस कलीसिया की हिफाजत करनी है। मुझे अगर दर्द है तो मैं बात करता हूँ, मैं भी जाके कोई बाहर बैठ जाऊँ जाके तो मैं समझता हूँ फिर कौन बोलेगा। नाज़रीन अगर आज मैं बोल रहा हूँ ये आपकी खातर बोल रहा हूँ, आपके आने वाली नस्लों की खातर बोल रहा हूँ। आपको अपनी नस्लों के लिए निकलना पड़ेगा, उस टास्क फोर्स का हिस्सा बने ताकि इस तरह के सारे गंदे अंडे जितने भी हम उनको साफ कर सके। चर्चेस को क्लिनजिंग की ज़रूरत है चर्च की। इसके साथ नाज़रीन हमने कोशिश की बिशप सादिक डैनियल साहब से बात करने की, मगर उन्होंने मुनासिब नहीं समझा हमारा फ़ोन उठाना। मगर हम कोशिश करते रहेंगे कि अपने प्रोग्राम में उनको ज़रूर लेकर आए, उनसे जान सकें कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।